Hello friends, good morning to all of you. This is Chobila here. Welcome to my channel, Ebirat Study Center. ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ OSSTTର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ MCQ ରହିବ। ଆମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାପରେ ଆମେ MCQ ଏମିତି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ଏବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛୁ ଯେଉଁଟାକି ପଭର୍ଟି ଉପରେ ସବୁକିଛି ଡିସ୍କସ୍ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇକି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆସିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ CST ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ଜିକେ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ 7 ମେଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, 7ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଟା ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତାହା ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କ'ଣ ଅଛି, ଇନଷ୍ଟେବିଲିଟି। ଇନଷ୍ଟେବିଲିଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନସୁନ୍କୁ ଟାକି ରହିଥାନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ବିନା ମନସୁନ୍ରେ ତ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ହେଇପାରିବନି। ଯଦି ଏଗ୍ରିକଲଚର ହେବ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କଥା, ମାନେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁ ୟା କେଉଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କରୁଛୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କୁଆଁ କରିବା କଥା କି କୌଣସି ୱାଟର ସପ୍ଲାଇର ସୁବିଧା ରଖିବା କଥା। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ମନସୁନ୍କୁ ଟାକି ରହୁଛୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଷ୍ଟେବିଲିଟି ରହୁନାହିଁ କ୍ରପ୍ରେ, କ୍ରପିଂରେ, ହାରଭେଷ୍ଟରେ, ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ, କଲ୍ଟିଭେସନରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଇନଷ୍ଟେବିଲିଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେସିକାଲି ସକ୍ସେସିଭ୍ ମନସୁନ୍ କେଉଁ ସମୟରେ ଆସିଥିଲା ନା 1987ରୁ 88 ସମୟରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ 1990 ଆଉ 2000 ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନସୁନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଥିଲା ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ। କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ମନସୁନ୍କୁ ଟାକି ରହୁଛୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯଦି ପଏଣ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିବା କ୍ରପିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରପିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ କ'ଣ, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆମେ ରଖୁ, ଯେଉଁଟାକି ଫୁଡ଼୍ କ୍ରପ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ନନ୍ ଫୁଡ଼୍ କ୍ରପ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫୁଡ଼୍ କ୍ରପ୍ସ କ'ଣ? ଫୁଡ଼୍ କ୍ରପ୍ସ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସୁଗର କେନ୍ ହେଲା ଯାହା ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଆଉ ନନ୍ ଫୁଡ଼୍ କ୍ରପ୍ କେଉଁଟା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ତାକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ଯାହା ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ବେସିକାଲି ଆମେ ନଟ୍ ଫୁଡ଼୍ କ୍ରପ୍ସ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ୟୁଜ୍ କରୁନୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆମେ ବେସିକାଲି କ'ଣ ଫୁଡ଼୍ କ୍ରପ୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁନାହୁଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଯେଉଁ ଫଲ୍ ହେଇଛି ୟା ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଯାହା ତଳକୁ ଯାଇଛି ନନ୍ ଫୁଡ଼୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କି ଫୁଡ଼୍ କ୍ରପ୍ସ ଆମେ ବେଶିକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ନନ୍ ଫୁଡ଼୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ, ନନ୍ ଫୁଡ଼୍ ଗ୍ରେନ୍ସ ୟା ନନ୍ ଫୁଡ଼୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆମେ କରୁନାହୁଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବେସିକଲି ଆମେ ଯଦି ନନ୍ ଫୁଡ଼୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ୟା ନନ୍ ଫୁଡ଼୍ ଗ୍ରେନ୍ସ କରିବା ଯଦି କରିଥାନ୍ତା ୟା କରିବା ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମିରେ ସୁଧାର ହେବ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖରିଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଖରିଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଆଉ ଯେଉଁ ରବି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ରବି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଖରିଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ବେସିକାଲି ଯେଉଁ ରବି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେହି ରବି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ୟା ରବି କ୍ରପ୍ କମ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ କେଉଁ କ୍ରପ୍ କରୁଛୁ ନା ଖରିଫ୍ କ୍ରପ୍
प्रोडक्शन बहुत करुचु ठीक अच्छे। तो जोटा कि आम रबी क्रॉप बेसिक यूज करवा कथा ठीक अच्छे एतिक बुझिले। तो देखो एग्रीकल्चर जो प्रोब्लेम रो समस्यार सम्मुखीन होउची तो ताहा होउची जो जगह आम देखु रबी क्रॉप करुचु तो रबी क्रॉप कब करा जाउची रबी क्रॉप तो बेसी करवा दरकार नहीं कि। तो नेक्स्ट जीवा देखंतु लैंड ओनरशिप कौन लैंड ओनरशिप कहले जो लैंड रो जो माने मालिक अछंती सही माने कौन करचंती ना इन इक्वालिटी आकार रे लैंड को डिस्ट्रीब्यूशन करिसंती जोटा कि जहाँ पाखरे अच्छी तो लैंड बहुत अच्छी कहा पाखरे नाही जहाँ पाखरे बेसी लैंड अच्छी से कौन करुच्ची से एग्रीकल्चर करूना आउ जहाँ पाखरे कम अच्छी से एग्रीकल्चर करुच्ची। तो देखो अब इंडिया तो पॉपुलेशन बहुत अच्छी इंडिया पॉपुलेशन 150 करोड़ रो अधिका। तो 150 करोड़ रु अधिका पॉपुलेशन को जदि आम जो माने जो मान पाखरे लैंड कम अच्छी से ही माने जदि एग्रीकल्चर करेंगे तो एमती डिस्ट्रीब्यूशन केमती हो पार फूड ग्रेन्स या फूड जहाँ भी आम एग्रीकल्चर करुचु क्रॉप करुचु तो तार डिस्ट्रीब्यूशन ठीक भाव में हो पारे कहीं पॉपुलेशन वास्ट पॉपुलेशन इंडिया इज ए वास्ट पॉपुलेशन कंट्री ठीक है। तो आम कहबार अर्थ कि लैंड ओनरशिप जोटा अच्छी सेटा इनइक्वालिटी रे डिवाइड करा जायछि। तो सहित पॉपुलेशन जो जगह रहिबे नहीं कि अजथा माने आम जदि कहबा बिल्डिंग बनै दउछंती जो जगह के दरकार नहीं कि आउ गोटे गोटे जगार जे माने गोटे फार्मर जो मैंने अच्छा से रही जगह नहीं कि। तो ये भाव अन इक्वालिटी इनइक्वालिटीली डिस्ट्रीब्यूशन होइछि लैंड ठीक अच्छे। नेक्स्ट कौन देखो सब डिविजन एंड फ्रैगमेंटेशंस ऑफ होल्डिंग यार अर्थ देखो सब डिविजन अर्थ होमें देखो गोटे फैमिली कौन अच्छी दीटी पाई अच्छा फास्ट एंड सेकेंड ओके। फास्ट रो केतोटी हला मानि दंतु चारिटी हला यार हला तीनटी तो यार हला पुणी तीनटी यार हला पुणी दुईटी। तो एमती भाव में गोटे जो लैंड थिला एटा को कौन करागला ए लैंड को पुणी इे 4 भाग करागला इे 3 भाग करागला ठीक अच्छे। पुणी यही 4 भाग को कौन करागला समस्त पाखरे 3 भाग करागला। तो एमती भाई सब डिविजन करा जाउछि बुझिपारे कि नहीं एमती सब डिविजन करने द्वारा कौन होछि ना आम जो आमर जो आम जदि गोटे बड़ लैंड ठीक अच्छे एमती सब डिविजन करवा इलाका जीव जो आम डिविजन करुछु ए इलाका अयथा नष्ट हे यहाँ जो आम करुछु नहीं कि ये जो जदि आम कहवा जोटा बाउंड्री आम जोटा कहूँ नहीं कि यार एतिकी भाग यार एतिकी भाग जो जगह आम तार गोटे कौन दो ना गोटे साइन दो या कौन सी गोटे बाउंड्री टाइप दि जाए। तो सही आकार में एमती नष्ट होटा लैंडटा नष्ट हो ना नहीं। तो सहित छोट जमीन रे जड़े केते एग्रीकल्चर करिवो केते चाष करि परिवो बुझिपारे कि नहीं यहाँ हूँ सब डिविजन समस्या जोटा कि आम इंडिया रे बेसिक देखा मिलूँ कहीं पॉपुलेशन बहुत बढ़ुची ओके। नेक्स्ट कौन अच्छे देखो लैंड टेन्यूर देखो तो लैंड टेन्यूर अर्थ हो कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड ब्रे मतलब जिते बेले इंडिपेंडेंस भारत हो नाला से समय कौन करा ना गोटे जमी को जन को दि जाऊला एवं ताको गोटे वर्ष कि 2 वर्ष करने दि जाऊला तापर से ही जमी को आउ जड़े को दि जाऊला गोटे वर्ष कि 6 मास दि जाऊला। तो एमती टेन्यूर लखा जाऊला जो कि ठीक भाव में आम जदि कहबा एग्रीकल्चर हो पारु नथिला ठीक अच्छे। नेक्स्ट कौन पॉइंट अच्छे देखो कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर्स देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो एग्रीकल्चरल लेबरर अच्छा जदि से मानकर स्वास्थ्य ठीक नहीं
कि ସେହି ମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ପଇସା ମିଳୁନି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁବେଳେ କମି କମି ଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଯାଉଛି କଣ୍ଡିସନ୍ସ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲେବରର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ୍ ଏଇଟା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ଏହିପରି କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଦର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବି ଅନେକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଫ୍ ଫାର୍ମିଂ, ଦ ମାର୍କେଟିଂ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଇନ୍ ଡେପ୍ଥନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାର୍ମର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଦ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଫ୍ ଫାର୍ମିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ରପ୍ ରୋଟେସନ୍ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜିକାଲି ଆଜିକାଲି ତ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଏଗ୍ରିକଲଚର କରୁନୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ପ୍ଲଟ୍ ବିଷୟରେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ, କ୍ରପ୍ ବିଷୟରେ ଏତିକି ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ, ନାଇଁ କି। ତ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କ୍ରପ୍ ରୋଟେସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। କ୍ରପ୍ ରୋଟେସନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ରବି କ୍ରପ୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ଖରିଫ କ୍ରପ୍ କରିବା କଥା, ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ତ ଆମେ ଯଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବା କଥା ନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାଷ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ତା'ର ଫର୍ଟାଇଲ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା କେମିତି ରହିବ, ସବୁବେଳେ ଉର୍ବର ରହିବ, ଫର୍ଟାଇଲ୍ ରହିବ। ଆମର ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ରବି କ୍ରପ୍ କଲା ତାପରେ ଖରିଫ କ୍ରପ୍ କଲାନି ତ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସେ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଫର୍ଟାଇଲ୍ ଅଛି, ଉର୍ବରତା ରହିଛି, ତା'ର ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା କ୍ରପ୍ ରୋଟେସନ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ କ'ଣ, ଇନ୍ଆଡେକ୍ୟୁଟ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ୟୁର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ, ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ସବୁ ଦିନ କରିବା କଥା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ବହୁତ କିଛି କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଇଟା ସାଇନ୍ସ ବି କହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ମଚ୍ ଲେସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଦେନ୍ ଜାପାନିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇନିଜ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜାପାନ ଆଉ ଚାଇନାରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଲେସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ କରୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ, ଦ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ପୁଅର୍ କ୍ୱାଲିଟି ସିଡ୍ସ, ଆମେ ଯଦି ଭଲ ପରିମାଣର ଯେଉଁ ସିଡ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବାନି ତାହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ମାନେ କ'ଣ କରିବନି, ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କ୍ରପ୍ ହେଉଛୁ, ହାରଭେଷ୍ଟ ଯେଉଁ କରୁଛୁ, ସେଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ଭଲ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଯେତିକି ମିଳିବା କଥା, ଯେତିକି ଫଳ ଆସିବା କଥା ସେତିକି ଆସିବନି ଯଦି ଆମେ କ୍ୱାଲିଟି ସିଡ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବାନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ, ଇନ୍ଆଡେକ୍ୟୁଟ୍ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ, ସେଇଟା ଆମେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଇରିଗେଟେଡ଼ କରୁନୁ, ବୁଝୁନୁ। ଯେଉଁ କଲ୍ଟିଭେଟେଡ଼ କରୁଛୁ ସେ ଜାଗାରେ ଇରିଗେଟେଡ଼ କରୁନୁ, ଇରିଗେସନ୍ କରୁନୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ଠିକ୍ ହିସାବରେ କରୁନୁ। ଆଉ କ'ଣ, ଇନ୍ଆଡେକ୍ୟୁଟ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଇଫିସିଏଣ୍ଟ ଫାର୍ମ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, the method of cultivation in most area of India are still primitive. Most farmers continue to use native plough and other accessories. However, the problem is not one shortage of modern machinery. The real problem is that unit of cultivation are too small to permit the use of such machinery. ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବେଶୀ ମେସିନେରୀ ୟୁଜ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ଯେଉଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କରିପାରିବା। ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ପ୍ରଥା ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯଦି ଜଲ୍ଦି ମେସିନେରୀ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଏଜ୍ରେ ଆମେ ଯଦି କ୍ରପିଂ କରିବା, ଏଗ୍ରିକଲଚର କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ, ନାଇଁ କି। ଆଉ କ'ଣ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ମାର୍କେଟିଂ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଏଇଟା ବି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ରହିଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଗ୍ରିକଲଚରର ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କରାଯାଉଛି ତା'ର ସବୁବେଳେ ଲୋ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି। ମାର୍କେଟରେ ଯେତିକି ରେଟ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି କହିବା ମାର୍କେଟରେ ବି ଆମେ ଘୋଟାଲା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଆମେ କହୁଛୁ ଜଣେ ଆମଠୁ 2 ବସ୍ତା 3 ବସ୍ତା କମ୍ ରେଟ୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ଆମେ
जहाँ भी आम एग्रिकल्चर करूँ जहाँ भी आम हार्वेस्ट करूँ ताकू कम दाम रे नहीं से मैंने कौन कर सही मार्केट रे हाई दाम रे बिकुंट तो जो कम दाम जिनिस हाई दाम रे बिकिले लाभटा तो सही मानक है आमको है तो जो मैंने एग्रिकल्चर एग्रिकल्चर लेबर अच्छा से सेटिस्फाई लगुनि बुझे सेटिस्फाई लगुनि तो से मार्केट रे से माने बिका को जाऊना कि एग्रिकल्चर करने को से चाहूना एमती भाव में आम जो कौन एग्रिकल्चर जो लेबर अच्छा से मैंने इच्छा करूना तो एमती ये जो समस्या मान रही समस्या मान को आम टे ध्यान देवा कथा बुझिपारे कि नहीं जमीक देखो एग्रिकल्चर क्रेडिट रही देखो मेन इंपोर्टाट इंडियन फार्मर जो अच्छे से सब कौन कर क्रेडिट को बेसिक ध्यान दिखती कि एतिक मत मिलला एतिक नहीं मु कहीं करी प्राइस बढ़ूना सब लो प्राइस रोचे यहाँ हूँ गोटे गोटे माने थिंकिंग जोटा कि एग्रिकल्चर लेबर मानकर रही थाए आउ भी अनेक प्रकार जदि आम कहवा कारण रही जमीक देखो रूराल एरिया रे कौन रही ना लो अर्निंग पावर ऑफ द बोरोअर देखो कि जोड़े जो बोरोअर अच्छी जहाँ भी करुच्ची एग्रिकल्चर कौन ना बहुत कम पैसा से इनकम करुच्ची तो से एग्रिकल्चर करने को मन करूनी इच्छा करूनी से आउ कौन यूज ऑफ लोन फॉर अन प्रोडक्टिव पर्पज देखो रूराल एरिया कौन कर एग्रिकल्चर आणुंट पैसा किंतु एग्रिकल्चर रे लगाऊ ना ठीक अच्छे एमती भाव में से पैसाटा नष्ट है एग्रिकल्चर लोन पर अणाई से लगाऊना गोटे गोटे जो मैंने रोच तो एक्सेसिवली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द मनी लेंडर जहाँ भी कौन कर जहाँ मनी लेंडर रु पैसा आणुंट एवं लैंड किणुंट से जगह से मनी लेंडर कौन कर हाई दाम रे हाई रेट रे दौची पैसा कि जहाँ भी आम कह लैंड बुझे तो जदि हाई दाम रे बिकिब जदि से जगह इनकम हेनी एग्रिकल्चर ठीक हिसाब से हेनी तो सी एग्रिकल्चर लेबर अच्छी सी कौन कर ना नेक्स्ट आउ एग्रिकल्चर करूना आउ कौन मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स बाय द लैंडर्स जो लैंडर्स अच्छा से माने मन इच्छा से मानकु हैरान करुछंती से मानकु ठीक हिसाब से एग्रिकल्चर करने को दौना कि से मानकु जदि गोटे लैंड देवे कि एते मते पैसा देबू कि एथर जदि हार्वेस्ट है किसी प्रोब्लेम है मोर किसी जीवनी तो तू मते ही पैसा देबू यहाँ हूँ मैनिपुलेशन मन इच्छा काम करवा आउ कौन एग्रिकल्चरल प्राइस देखो जो सरकार गवर्नमेंट अच्छी से माने केती माने एति पैसा जोटा कि इनक्रीज करवा कथा प्राइस एग्रिकल्चर रे बुझे तो सहीटा हो पारुनी ठीक से हो पारुनी कहीं एग्रिकल्चर जो करुँच बुझे जो मैंने एग्रिकल्चर कर सही मानू जदि आम प्राइस बढ़ेबानी सब बेले आम लो प्राइस रखा ताहले से एग्रिकल्चर जो मैंने कर एग्रिकल्चर करने को इच्छा करेंगे ना तो यहाँ गोटे भी एग्रिकल्चर प्राइस जमी सब बेले लो लो हो जाऊँगी बुझे कि नहीं लो प्राइस रे चलुची बुझे आ कौन नीड फॉर प्राइस स्टेबिलिजेशंस देखो आउ कौन करवा आवश्यक एटा जो आप देखिपुं नीड ऑफ प्राइस स्टेबिलेशन जो प्राइस अच्छी ठीक स्टेबल आकार करवा कथा जोटा कि हो पारू ना इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जोटा कि आम कहूँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहा कथा जी प्राइस अच्छी ठीक से पूरी जो एग्रिकल्चर लेवल जमी चलो कि जहाँ जमी साटिस्फैक्शन लगे से आकार एमएसपी करवा कथा मिनिमम सपोर्ट प्राइस को रखा कथा आ कौन प्रोक्योरमेंट प्राइस जोटा आम कहूँ पीपी यार अर्थ कौन देखंतु कि रबी क्रॉप है कि खरीफ क्रॉप है ठीक अच्छे जोटा कि हार्वेस्ट परे जो प्राइसटा इनक्रीज होगा कथा जो प्राइस रहिबा कथा ताको आम कहूँ प्रोक्योरमेंट प्राइस ठीक अच्छे जोटा कि इनक्रीज होनी ठीक अच्छे आउ कौन इश्यू प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स आईपीएफ जो आम कहूँ ये गवर्नमेंट द्वारा कौन होता है ना जहाँ आम क्रॉप करुचु हार्वेस्ट करुचु ताहा माने वर्ष को कि 2 मासरे 3 मासरे कौन होता है ना 3-4 टंका इनक्रीज होता है फूड ग्रेन्स ताको आम कहूँ इश्यू प्राइस ऑफ फूड ग्रेन जोटा कि गवर्नमेंट द्वारा करा जाए ठीक अच्छे ये क्वेश्चन पचरा जापे यहाँ ध्यान देवे।
ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट जी आम देखु देखो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जोटा कि आम कहूँ कि लोक मान केमती डिस्ट्रीब्यूशन करा नहीं कि से आकार ही एग्रीकल्चर करा जाए जहाँ भी आम बिजनेस करुँ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आकार करा जाए ठीक अच्छे। तो यहाँ थी आम कंटेंट आप ठीक हिसाब से बुझीपारे मत आशा जहाँ लगुच ठीक अच्छे। तो आम कौन करवा ना एमसीक्यू को देखा देखो चलो कनसेप्ट आप क्लीयर होती ठीक अच्छे। जदि क्लीयर नहांती कोटा बुझीपारे आप माने कमेंट बॉक्स दिंतु चलतु एमसीक्यू करवा। तो सहित आम कौन कर 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास एमसीक्यू करुँ आप मैंने देखी ना प्लेलिस्ट जाकि देखिपारे। प्रथम क्वेश्चन देखो प्रथम क्वेश्चन कौन ना इट इज फाउंड इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। रूरल एरिया ऑफ इंडिया रे आम कौन पाऊ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट डिसग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखंतु यार आंसर हो ऑप्शन नंबर बी डिसग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट ठीक अच्छे। डिसग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट अर्थ हो कि जो माने एग्रीकल्चर करुँच एग्रीकल्चर जो ना बेनिफिट है नहांती से माने कौन कर ना एग्रीकल्चर करूना आम डिसग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहूँ। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कोटा जो मैंने जदि कहवा जो मैंने पाठ पढ़ी जॉब पाई ना। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अर्थ कौन कि जो मैंने कौन करती केतिकी समय पर्यंत से माने कौन करेंगे जॉब करेंगे तापर आउ केतिकी समय जॉब करेंगे बुझे से हूँ पार्ट टाइम जॉब जमी अनएम्प्लॉयमेंट जो रही आम कहूँ अनएम्प्लॉयमेंट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखो क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग रे कौन इम्पोर्टेंट रही क्रॉप रोटेशन एनिमल मैन्योर मैकेनिकल एग्रीकल्चर एंड नेचुरल फर्टिलाइज कंट्रोल ऑल ऑफ द अबव। ऑर्गेनिक फार्मिंग इम्पोर्टेंट कौन ऑर्गेनिक जो आम फार्मिंग करुँ तो यार आंसर हो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव ठीक अच्छे। ऑर्गेनिक अर्थ हो क्रॉप रोटेशन करवा जोटा मुझे आपको डिस्कस करी एनिमल मैन्योर भी यूज करवा तो सहित जो मैकेनिकल एग्रीकल्चर एंड नेचुरल फर्टिलाइजर कंट्रोल करवा ताको आम कहूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट देखो फेयर इन विलेजेस आर हेल्ड फेयर इन विलेजर आर हेल्ड वीकली रखा जाए फोर्टनाइट रखा जाए डेली रखा जाए स्पेशल ओकेजन रखा जाए। तो यार देखो राइट आंसर हो आपण मैंने नोट बनातु बुझे कि नहीं ये नोट आपण मैंने सब पाइबे बुझे कि नहीं। तो जब नोट बन पारे ताहले आम टेलीग्राम चैनल जॉइन जातु जोटा कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। इसका जो यार जो आंसर हो ऑप्शन नंबर ए वीकली हो ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखो इन 1951 नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन कंट्री कहतु 1951 रे आम भारत रे कंट्री रे जदि आम कहवा केतोटी यूनिवर्सिटी थिला 25 27 36 53 तो यार राइट आंसर हो 27। नंबर 5 व्हेन वाज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एस्टाब्लिश मध्य प्रदेश केबे एस्टाब्लिश होइतिला 1948 1956 1961 1956 डबल दीची। तो यार राइट आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर बी 1956 यहाँ भी 1956 दीची यहाँ भी देखिए जोटा भी आपण मैंने करेंगे सेटा राइट हे ओके ठीक अच्छे। एमती क्वेश्चन भी गोटे गोटे देता है जोटा कि आम बोनस मार्क आम आंसर जानी था। व्हेन प्राइस इंडेक्स इंक्रीज इट्स टाइम व्हेन प्राइस इंडेक्स इंक्रीज इट्स टाइम कब केबे जो प्राइस इंडेक्स इंक्रीज होता है वैल्यू ऑफ करेंसी इंक्रीज जदि हो करेंसी डिक्रीज जदि हम नो इफेक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ करेंसी किसी इफेक्ट हेनी से समय प्राइस इंडेक्स इंक्रीज होता है। तो राइट आंसर हो सिंपल आंसर वैल्यू ऑफ करेंसी डिक्रीज जब जिते आम करेंसी डिक्रीज हो से समय प्राइस इंडेक्स इंक्रीज हो। एलिमेंट ऑफ कमर्शियल एनर्जी जो आम कहूँ तार एलिमेंट कौन
कमर्शियल जहाँ आम व्यवहार आम जहाँ यूज करुँ कोल पेट्रोलियम गैस एंड इलेक्ट्रिक तो यार राइट आंसर हो ऑल ऑफ द एबव सब हूँ गोटे कमर्शियल एनर्जी ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो ठीक एनर्जी फ्रॉम हॉट स्प्रिंग स्मॉल हाइड्रो पावर बायोमास जियोथर्मल एनर्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हॉट स्प्रिंग रे आम कौ एनर्जी यूज करि थाउ तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी जियोथर्मल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 9 इन इंडियन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टार्टेड फास्ट इंडियन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जदि आम कहवा कौ जगह प्रथम इलेक्ट्रिसिटी व्यवहार करा दिल्ली चेन्नई दार्जिलिंग इन भोपाल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यार आंसर हो दार्जिलिंग रे करा ठीक अच्छे। लास्ट क्वेश्चंस जदि आपण मानू वीडियो पसंद आसुची लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ देखो लास्ट क्वेश्चन नेशनल लिटरेसी मिशन्स इज रिलेटेड टू नेशनल लिटरेसी मिशन्स जोटा अच्छी से कहाँपाई उपयुक्त प्राइमरी एजुकेशन हाई एजुकेशन रूरल एडल्ट एजुकेशन तो यार सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर डी एडल्ट एजुकेशन जोटा कि नेशनल लिटरेसी मिशन रखा जाई थिला ठीक अच्छी। तो ये थिला हमर इकोनॉमिक्स OSSTT आपण मानकू बोधे वीडियोटा पसंद आसुची ताहले लाइक करूँ शेयर करूँ और सब्सक्राइब करूँ रोची धन्यवाद जय जगन्नाथ।